قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس، اداروں کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ پنجاب میں پہلے انتخابات سے باقی صوبوں کے انتخابات پر اثر پڑے گا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے بل مسترد کر دیا۔ قانون کے تحت اس رقم کے استعمال کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری لینا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ایگزیکٹو اتھارٹی نے کرنا ہے۔ کمیٹی وزارت خزانہ کو آئین اور قانون کے مطابق عمل درآمد کا کہے۔ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک، آڈیٹر جنرل، وزیر قانون، وزیر مملکت خزانہ نوید قمر، خالد مقصی اور برجیس طاہر کا اظہار خیال۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چینی کی اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی منظوری دے دی۔ اسمگلنگ کے تدارک کے لیے آج اسلام آباد میں اجلاس طلب۔ عوام کو اسمگلروں، ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ملوث کرداروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے اور سخت سزا دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دبئی کی رہائشی عمارت میں آتشزدگی سے 3 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، غمزدہ خاندانوں سے تعزیت۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی مشن کو متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد اور تعاون کی ہدایت۔ فتنے کی غلط پالیسیوں سے ملک بحران کا شکار ہوا۔ عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے ملک کو دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ محمد نواز شریف نے ملک کو بحرانوں سے نکالا۔ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں خطاب۔ آئین میں تمام اداروں کی حدود متعین ہیں، کوئی بھی ادارہ کسی دوسرے کے اختیارات سلب نہیں کر سکتا۔ سائفر کی بے بنیاد کہانی گڑھنے والا فتنہ آج مدد کے لیے امریکیوں کو خط لکھ رہا ہے۔ اتحادی حکومت کی مثبت پالیسیوں کی بدولت دوست ممالک پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، نوافل ادا کیے۔ ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ جنوبی وزیرستان میں شہید ہونے والے فوجی جوان آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ وانا میں لانس نائک شعیب علی اور سپاہی رفیع اللہ کی نماز جنازہ میں شہیدوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، ISPR۔ رحیم یار خان میں کچے کے علاقے میں آپریشن کا نواں روز، ڈاکوؤں اور عسکری پسندوں کے ٹھکانے نظر آتش، متعدد ڈاکو ہلاک اور گرفتار۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، ہزاروں ایکڑ کا رقبہ واگزار۔ آپریشن میں پولیس کو پاک فوج کی معاونت۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس آج دوبارہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے PTI اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے درمیان مقابلہ متوقع۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی نااہلی کے بعد قائد ایوان منتخب نہ کیا جا سکا۔ پنجاب میں مفت آٹا اسکیم کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر، 25 رمضان تک 53 ارب روپے کا مفت آٹا تقسیم کیا گیا۔ پنجاب کے 3 کروڑ 10 لاکھ خاندانوں نے مفت آٹا حاصل کیا۔ مجموعی طور پر 10 کلو کے 4 کروڑ 39 لاکھ 36 ہزار 648 تھیلے تقسیم کیے گئے۔ ترجمان پنجاب۔ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس آج جاپان میں ہو رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جاپان، جرمنی، فرانس اور اٹلی کے اس اجلاس میں چین کے اثر کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور تائیوان کے مسئلے پر غور ہوگا۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں فوج اور ملیشیا کے درمیان شدید لڑائی جاری، ہلاکتوں کی تعداد 57 ہو گئی، 1000 سے زائد زخمی۔ فوجی ہیڈ کوارٹر اور صدارتی محل پر بھاری ہتھیاروں سے حملے، ڈاکوؤں اور فائرنگ کی آوازیں۔
पाकिस्तानी कोहपैमाओं शहरोज काशिफ और नाइला खयानी ने तारीख रकम कर दी। नेपाल में दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा को सर कर लिया। 21 साल शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 में से 11 चोटियों को सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपैमा बन गए। नाइला खयानी अन्नपूर्णा को सर करने वाली पहली, जबकि 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज तीसरा मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की बर्तरी हासिल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास चेयरमैन कमेटी कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में वज़ीर ममलूकत खजाना आयशा गौस पाशा, अटॉर्नी जनरल, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम इदारों का टकराव नहीं चाहते। वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने कहा कि पार्लियामेंट का काम कानून साजी और बजट की रकम को इस्तेमाल करना है। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि आइन के तहत मामले को हल करने के लिए ज़रूरी है कि इस मामले को कौमी असम्बली में भेजा जाए। अगर ज़मनी ग्रांट की समरी आज काबीना इजलास को भेज देते हैं तो आज वफाकी काबीना और कौमी असम्बली का इजलास भी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी के स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी है। ये फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में मुनक़िदा आला सतह इजलास में किया गया। वज़ीर आज़म ने नाजायज़ मुनाफाखोरी, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इत्तलात पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इस लानत में मुलव्वस अनासर के आहनी हाथों से निमटने और उन्हें सख्त सजा देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को स्मगलरों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हम अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को सूबे में चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दामात और निगरानी और चीनी मिल मालिकान से मुलाकात की भी हिदायत की। उन्होंने सूबाई हुकूमत को तरीक़ाकार वज़ा करने का हुक्म दिया ताकि स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से पकड़ी जाने वाली चीनी अवाम को मेयारी कीमत पर फराहम हो सके। पिछले हफ्ते भी वज़ीर आज़म ने इस मसले पर इस्लामाबाद में इजलास मुनक़िद किया था और उनके इक़दामात से चीनी की कीमत 52 रुपये किलो पर वापस आ गई थी। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग के तदारुक के लिए आज इस्लामाबाद में आला सतह इजलास भी तलब किया है, जिसमें चीनी समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क की कार्रवाई की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क भर की तरह पेशावर में भी शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर राव मोहम्मद हाशिम की ज़ेर निगरानी टीम ने पेशावर रिंग रोड पर कार्रवाई करते हुए गोदाम में ज़ख़ीरा की गई चीनी की 6500 बोरियां बरामद करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद से, जो पेशावर में असिस्टेंट कमिश्नर राव मोहम्मद हाशिम अजीम के साथ मौजूद हैं। जी, चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ नोटिस दिया था। उन्होंने ये हिदायत जारी की है तमाम मुल्क के जो इंतज़ामिया है कि वो जो चीनी स्मगलर्स है और चीनी जो ज़हीरा अंदोज़ है जो मुनाफाखोरी के लिए चीनी को ज़हीरा करते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर के जो असिस्टेंट कमिश्नर है राव मोहम्मद हाशिम, उन्होंने उनकी ज़ेर निगरानी रिंग रोड पेशावर पे एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर तकरीबन 50 kg के 6500 बोरिया चीनी जो ज़हीरा अंदोज़ों ने स्टोर में छुपा रखे थे और कंटेनर में थे, तो उस पर उन्होंने छापा लगाए हैं और उसको बरामद करके 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद है। हमने फूड डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मैंने खुद ये ऑपरेशन किया था। तो ये जो स्टोर हुआ था ये रिंग रोड पे कंटेनर्स थे, 7 to 8 कंटेनर्स थे और अराउंड 6500 बैग से ज़्यादा जो है वो चीनी थी।
تو وہ ہم موقع پہ پہنچے ہیں اور وہاں پہ 2 بندوں کو زیر حراست بھی لیے تاکہ ہم فردر انویسٹیگیٹ کر سکیں کہ یہ اس کا جو ہے اگلا لائے عمل کیا بنا رہے تھے. ضلع انتظامیہ پشاور کا وہ سرگرم ہے اور بھرپور انداز سے زہیر اندوزوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں اور چھٹی کے دن بھی انہوں نے ایک بڑا چھاپا مارا ہے اور 6,500 چینی کی بوریاں برآمد کی ہے. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا جو ہم نے ٹیمیں تشکیل دی ہے اور جو زہیر اندوزی کا جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا اور جلد ہی جو قیمتیں ہیں جو زہیر اندوزوں نے اس میں خود ساختہ اضافہ کیا ہے تو اس کو کنٹرول کر دیا جائے گا. جی سجاد، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ابھی آگاہ کریں آپ کو کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے سستا ہو گیا ہے. ٹریڈنگ کے دوران اوپن مارکیٹ میں ڈالر 287 سے کم ہو کر 286 پر پہنچ گیا ہے. تفصیل جانتے ہیں ضمیر عباس سے. جی ضمیر، آگاہ کیجیے گا. ہم نے دیکھا کہ جو ڈالر کی ریٹ ہے وہ اوپن مارکیٹ میں بھی اب کم ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم پچھلے ہفتے سے دیکھیں تو وینسڈے کو ڈالر 1 روپے کم ہوا، تھرسڈے کو ڈالر 2 روپے کم ہوا، فرائیڈے کو بھی ڈالر 2 روپے کم ہوا اور آج منڈے ہے جو کاروباری ہفتے کا آغاز ہے. آج بھی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے مزید کم ہوا. تو اگر ہم وینسڈے کو دیکھیں تو ڈالر 292 روپے کا تھا اور آج ڈالر جو ہے وہ 286 میں ٹریڈ کر رہا ہے. تقریباً 6 روپے اب جو ہے اوپن مارکیٹ میں یہ کم ہو چکا ہے. اور اسی طریقے سے انٹر بینک کے ڈالر کی اگر ریٹ دیکھیں تو اس میں بھی تقریباً 2 سے 3 روپے کی کمی دیکھنے میں آئی ہے. یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھے کہ بڑا بہتری ہے معیشت کے لیے، کیونکہ اس کمی سے نہ صرف پاکستان کا روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، انفلیشن میں بھی اثر پڑ رہا ہے، بلکہ جو پاکستان کے جو قرضے ہیں اس کی ادائیگی میں بھی ان کو کافی ریلیف ملے گا. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہے وہ بھی جب مکمل ہونے جا رہا ہے اور بہت جلد امید ہے کہ اس سے بھی جو قسط ہے وہ پاکستان کو مل جائے گی. اس کے علاوہ 2 ممالک نے جو مدد کی ہے اور پاکستان کے فورن ریزرو کو اسٹرانگ کرنے میں، اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا جو انٹر بینک اور اوپن بینک میں ڈالر کی قدر میں. تو بہت اچھا پازیٹیو سائن دیکھ رہے ہیں ماہرین. ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر اسی طریقے کا تسلسل جاری رہا تو ڈالر جو ہے وہ مزید کم ہوگا اور اس کمی کا جو فائدہ ہے وہ عوام کو بھی اس صورت میں حاصل ہوگا کہ جو چیزیں ہوں گی، جو انفلیشن ہے اس میں کمی آئے گی اور جو ہمارے جو قرضے ہیں واجب الادا اس میں بھی کمی ہوگی تو اس کا بھی بڑا ریلیف گورنمنٹ کو حاصل ہوگا. جی ضمیر عباس ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انتخابات مقررہ وقت پر اسی سال ہوں گے اور نواز شریف جلد واپس آ کر مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے. فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فتنے کی غلط پالیسیوں سے ملک بحران کا شکار ہوا. عمران خان اور اس کے حواریوں نے ملک کو دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایک پراپیگنڈے کے تحت اس فتنے کو جو ہے وہ اس ملک پہ مسلط کیا گیا اور اسی طرح کا ایک اوباش ٹولہ اس فتنے کے جو ہے وہ ساتھ تھا. ان لوگوں نے 4 سالوں میں ایسی پالیسیاں اپنائی کہ جن کے نتیجے میں ایک اچھا بھلا ملک جو ترقی کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، وہ ایسے معاشی حالات میں گر گیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی. وزیر داخلہ نے کہا کہ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے والوں کی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی. پی ٹی آئی حکومت نے حلقے میں کوئی ایک بھی ترقیاتی منصوبہ نہیں دیا، جبکہ مسلم لیگ نون نے ہر دور میں عوام کی خدمت کی. جب بھی اس ملک کے اوپر بحران آیا اور عوام نے اعتماد کیا مسلم لیگ پر اور میاں نواز شریف پر، انہوں نے تب اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے نکالا. آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں اور یہ جو پراپیگنڈا ہے آپ اس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ بھی کریں، اس کا تدارک بھی کریں. وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ آئین میں تمام اداروں کی حدود متعین ہیں، کوئی بھی ادارہ کسی دوسرے کے اختیارات سلب نہیں کر سکتا. شیخ پورہ کی تحصیل مرید کے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائفر کی بے بنیاد کہانی بنا کر عمران خان آج مدد کے لیے امریکیوں کو خط لکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی مثبت پالیسیوں کی بدولت دوست ممالک نہ صرف پاکستان کے قریب ہو چکے ہیں بلکہ پاکستان کی مدد بھی کر رہے ہیں. عمران خان ملک اور قوم دشمن آدمی ہے. اس نے ایک خاص ایجنڈے کے تحت آیا تھا ادھر، تو آج بھی امریکہ اس کے ساتھ ہے. یہ سارا ایک جھوٹا آدمی ہے. تو یہ امریکی پٹھو بھی ہے، پاکستان دشمن بھی ہے. عوام کو بھی پتہ چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو اب انشاءاللہ شماس صاحب ان کی ٹیم، وہ جو فائنانس کی ٹیم ہے ڈار صاحب، وہ رات دن محنت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہر چیز آپ کو بہتر نظر آئے گی.
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि अपनी हुकूमत के 6 महीने तक जिन्हें समझ नहीं आ रही थी कि IMF के पास जाना है कि नहीं, उन्हें मईशत पर बात करते शर्म आनी चाहिए। फवाद चौधरी और हमाद अजहर के बयान पर रद्द-ए-अमल में तलाल चौधरी ने कहा कि हर रोज हैकल एंड जैकल टीवी पर मुफ्त में शक्ल दिखाने आ जाते हैं और झूठ बोलते हैं। न्यूज चैनल्स उनका झूठ न चलाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हैकल एंड जैकल बताएं कि इख्तिदार से निकलते हुए IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी क्यों की थी। तलाल चौधरी ने कहा कि कैसी मुनाफिकत है कि मोदी की जिंदगी और जीत की दुआएं मांगने वालों को आज सत्यापाल के बयान की याद आ गई है। भारत, इसराइल और अमेरिका से फॉरेन फंडिंग लेने वालों की जबान दराजी और मुनाफिकत मिसाली है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर इतवार को रात गए तक जारी रहने वाली मुफ्त आटा स्कीम के हवाले से आपको आगाह करें कि इस मुफ्त आटा स्कीम जो है ये कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई है। 25 शाबान से शुरू होने वाले 53 अरब रुपए के मुफ्त आटा रिलीफ पैकेज से पंजाब के 3 करोड़ 10 लाख खानदानों ने मुफ्त आटा हासिल किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक मजमूई तौर पर 10 किलो आटे के 4 करोड़ 39 लाख 36,648 थैले अवाम में तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंतजामिया, पुलिस और तमाम मुताल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया है। मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले लांस नाइक शोएब अली और सिपाही रफ़ीउल्लाह शहीद को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके ज़रमलान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले ज़िला कुरम के इलाके पारा चन्नार के 25 साला लांस नाइक शोएब अली शहीद और लकी मरवत के 22 साला सिपाही रफ़ीउल्लाह शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शुहदा की नमाज जनाजा पहले जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना और बाद में उनके आबाई इलाकों में अदा की गई, जिसके बाद शुहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और जवानों समेत सिविल हुक्काम, शुहदा के लवाहिकीन और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। और आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए PTI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला मुतवक्किल है। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए PTI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला मुतवक्किल है। आपको आगाह करें कि साबिक वज़ीर आज़म के नाअहल होने के बाद अभी तक किसी भी एक मुत्तफ़िका उम्मीदवार पर आज़ाद कश्मीर असम्बली जो है वो नहीं पहुँच सकी है, जिसकी वजह से ताहाल नए वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं हो सका। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास सबसे कुछ ही देर में शुरू किया हो रहा है और आज उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि हुकूमती जो बेंचेस हैं उनके दरमियान शायद किसी नाम पर इत्तफाक हो सके। ताहम आपको ये भी आगाह करें कि हुकूमती बेंचेस में एक और फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की इत्तलाक भी मौसूल हुई हैं, जिसकी वजह से फ़िलहाल किसी भी एक नाम पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फ़िस्ताई भारतीय हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके जम्मू कश्मीर में G20 के मुतनाज़ इजलास से कई हफ्ते पहले ही मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयों में तेज़ी ले आए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज तलाशी ऑपरेशन के दौरान ख़वातीन और बच्चों समेत आम लोगों को हिरासा कर रहे हैं। G20 इजलास से कबल कश्मीरियों को खौफजदा करने के लिए उनके मकानात और दीगर अमलाक को भी तबाह किया जा रहा है। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में फोर्सेज एहलकारों की मजीद तैनाती अमल में लाई है। मकबूजा इलाके के तमाम शहरों, कस्बों और देहात में जगह जगह फौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकार तैनात हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा एडवोकेट देवेंद्र सिंह बहल ने एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में कश्मीरियों की जिद्दोजहद व आज़ादी को बदनाम करने और पुलवामा हमले के लिए पड़ोसी मुल्क को जिम्मेदार ठहराने की भारतीय साजिशों को बेनकाब किया है। भारत में कांग्रेस ने 2019 के पुलवामा के झूठे ऑपरेशन के बारे में
में सत्यपाल मलिक ने चौंका देने वाले इंकशाफात पर भारतीय वज़ीर आज़म की खामोशी पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सत्यपाल के इंकशाफ के बाद लोग पुलवामा हमले पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला मोदी से जुड़ा हुआ है। पुलवामा का ड्रामा मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। पुलवामा हमले के वक्त भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक के होशरुबा इंकशाफात के बाद भारत के एतदाल पसंद हलके मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसील बताएंगे अब्दुल्ला शाद। पुलवामा का ड्रामा मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। पुलवामा हमले के वक्त भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक के होशरुबा इंकशाफ के बाद भारत के इतदाल पसंद हलके मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने करण थापड़ को इंटरव्यू में इतराफ किया था कि पुलवामा वाकया इंतखाबात जीतने के लिए मोदी सरकार की चाल थी। मारूफ भारतीय सहाफी रवीश कुमार ने सवाल उठाया है कि पुलवामा हमले पर मोदी और अजीत डोभाल ने सत्यपाल मलिक को क्यों चुप रहने का कहा। साबिक वजीर आला कर्नाटक सुद्रामैया ने कहा है कि पुलवामा हमले और भारतीय फौजियों की हिलाकतों के जिम्मेदार मोदी और अमित शाह हैं, क्योंकि वो सियासी फवाइद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि सत्यपाल मलिक के इंकशाफात साबित करते हैं कि भारतीय क़यादत दहशतगर्दी को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करती है ताकि वो झूठे बयानिए से हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ा सके। उन्होंने आलमी बरादरी से भारत के पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपेगंडे का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के नुमाया मुसलमान रहनुमा अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को दिन दिहाड़े पुलिस हिरासत में कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल के बाद हिंदू इंतहा पसंद जय श्री राम के नारे लगाते रहे। कुछ रोज कबल योगी सरकार जाली इनकाउंटर में उनके बेटे असद और उसके दोस्त गुलाम मोहम्मद को भी कत्ल कर चुकी है। अतीक अहमद बारहा भारतीय मीडिया और सुप्रीम कोर्ट को कह चुके थे कि हिंदू इंतहा पसंद सरकार उन्हें कत्ल करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ मुतादिद मौके पर मुसलमान रहनुमाओं को मिट्टी में मिलाने की धमकी दे चुके हैं। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अतीक अहमद की मौत पर खुशियां मनाने वाले इंतहा पसंद गिद्ध की मानिंद हैं। लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उनमें राय बराबर भी ना उनमें रहम है ना उनमें इंसानियत है। और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। मुसलमान रहनुमा के बहीमाना कत्ल के बाद उत्तर प्रदेश में हालात कशीदा हैं। मुतादिद इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद आज़ाद कश्मीर असम्बली में नए कायदे ऐवान के इंतखाब का मरहला ताख़ीर का शिकार है। मजीद तफसील जानिए अदील अहमद की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही अपने अपने हतमी उम्मीदवारों पर मुत्तफिक न हो सकीं। ज़राए के मुताबिक इस वक्त तक दोनों अतराफ की पार्लिमानी पार्टियों के इजलास, राब्ते, मुलाकातें और मुज़ाकरात बेनतीजा रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो अगर फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दावा कर रहे हैं, हमारे साथ 7-8 लोग हैं और 19 लोग हैं अपोजिशन की 2 जमातों के, तो 27 लोग चाहिए नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट करने के लिए। तो उस लिहाज से तो फिर अपोजिशन और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्ट्रेंथ पूरी है। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए तलब किए गए इजलास में सिर्फ अपोजिशन अरकान ही शरीक हो सके। इजलास के दौरान कायदे ऐवान के इंतखाब के सिलसिले में कोई पेशरफ्त न हो सकी। कानून साज असम्बली का इजलास दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा है कि हमेशा अपनी कारकर्दगी और किरदार से अपने हल्के की नुमाइंदगी का हक अदा किया है और कभी उनके सर किसी के सामने नहीं झुकने दिए। लाला मूसा में एक तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि अपने ख़ानदान के किरदार और खिदमत की बुनियाद पर वो आइंदा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी समेटेंगे। उन्होंने कहा कि NA-70 के अवाम उन नुमाइंदों का कड़ा एहतसाब करेंगे जो गुज़श्ता 4 सालों में मरकज़ और सूबों में हुकूमत में होने के बावजूद हल्के के अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके। इस मौके पर पंजन कसाना से चौधरी अरशद और चौधरी शाहिदाद ने कमरुज़्ज़मान कायरा पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। और वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक ने कहा है कि इमरान खान ने यूटर्न लेने के सिवा कुछ नहीं किया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, इमरान खान ने एक तरफ रोजगार देने का वादा किया तो दूसरी तरफ उनके दौर में फैक्ट्रियां बंद हो गई और लोगों से रोजगार छीन लिया गया। इमरान खान ने 50 लाख घर देने का वादा किया लेकिन एक घर भी तामीर न किया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा मोहम्मद हनीफ की तरफ से इस्लामाबाद में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। इस पार्टी में मेंबर कौमी असम्बली ताहिरा औरंगजेब, मोहम्मद हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी समेत पार्टी के दूसरे रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क भर में तामीर और तरक्की का सफ़र फिर से शुरू हो गया है। हमने शहबाज शरीफ से कार्डियोलॉजी मांगा, हमने शहबाज शरीफ से अपनी माँ, बहनों और बेटियों के लिए इस रावलपिंडी के अंदर वो ट्रांसपोर्ट मांगी जो पेरिस और लंदन में चल रही है। हमने शहबाज शरीफ से यूरोलॉजी मांगा, हमने खेल के मैदान मांगे, हमने टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मांगा, हमने सफाई का निजाम मांगा, हमने पार्क्स मांगे। इस रावलपिंडी के अंदर 400 बेड पर मुश्तमिल रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी इंशाअल्लाह चंद दिनों में वजीर आज़म पाकिस्तान उसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि फ़र्ज़ की राह में शहीद होने वाले मुलाज़िमीन की खिदमत सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाज़िमीन के बच्चों को नौकरी देना महकमे का अहसन इक़दाम और मरहूमीन की खिदमत का एतराफ़ है। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने दौरान ड्यूटी फौत होने वाले गैपको मुलाज़िमीन के बच्चों को तकर्रुरनामे देने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में चेयरमैन गैपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और मुलाज़िमीन की कसी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में 33 गैपको मुलाज़िमीन को तकर्रुरनामे दिए गए। नाजरीन, रहीम यार खान से मुल्हिका इलाके कच्चा में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का नवा रोज है। कच्चा कराची और कच्चा जमाल में पुलिस के दस्तों की पेशकदमी के साथ वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने शब्बीर लठानी के ठिकानों का कंट्रोल संभालते हुए गैंग के 8 मुलजमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों से काबिल सिखानी गैंग के खुफिया ठिकानों पर शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। काबिल सिखानी ने भारी हथियारों के साथ पुलिस पार्टी के खिलाफ धमकी आमेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। अब तक पुलिस ने 3 डाकुओं को हलाक और 14 को गिरफ्तार किया है, जबकि ऑपरेशन में 1 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। कच्चे में जारी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन में पुलिस की मुआवनत के लिए बहावलपुर से पाक फौज का 30 जवानों पर मुश्तमिल दस्ता कच्चे के इलाके में पहुंच गया है। पाक फौज के दस्ते ने पकट नगली के मकाम पर कैंप कायम करके पुलिस की मुआवनत शुरू कर दी है। पाक फौज की जानिब से फराहम की जाने वाली 6 बख्तरबंद गाड़ियां भी इस ऑपरेशन में शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुबई की रिहायशी इमारत में आतज़दगी से 3 पाकिस्तानियों के जाम बहक होने पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने गमज़दा खानदानों से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी मिशन को मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद और ताउन की हिदायत भी की है। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं, जिसमें दोनों जानिब से हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक झड़पों में अब तक 60 अफराद हलाक और 600 जख्मी हो चुके हैं। हलाक होने वालों में आलमी इदारे खुराक के 3 एहलकार भी शामिल हैं। झड़पों के दौरान सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। खर्तूम में सदारती महल के करीब भी फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं। खर्तूम में झड़पों के दौरान फायरिंग से सऊदी अरब के एक मुसाफिर तैयारे को भी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद सऊदिया एयरलाइन ने सूडान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद खर्तूम और दीगर शहरों में हालात इंतहाई कशीदा हैं। दीगर शहरों में मरवी और बहरी में भी फायरिंग और झड़पों के इत्तलात हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक फ़ौज के जंगी तैयारों ने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अड्डों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। ये लड़ाई फ़ौज के सरबराह जनरल अब्दुल फताह बुरहान और RSF के सरबराह मोहम्मद हमदान के हामी धड़ों के दरमियान जारी है। फ़ौज का कहना है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तहलील तक लड़ाई जारी रहेगी, जबकि RSF का कहना है कि तमाम फ़ौजी अड्डों पर कब्जे तक उनके फ़ौजी लड़ते रहेंगे। उधर सूडान में कशीदगी और हालिया झड़पों पर गौर के लिए काहिरा में अरब लीग का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। मिस्र के नुमाइंदे ने सूडान में फौरी फायरबंदी का मुतालबा करते हुए फ्रीकैन से इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करने की अपील की। उन्होंने सूडान में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए भी अपने अज़्म का इयादा करते हुए सूडान के उमूर में बैरूनी ताकतों की मदाखलत की मुखालफत की। अमरीकी रियासत अलबामा में सालगिरह की तकरीब में फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 28 जख्मी हो गए।
ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر نوجوان شامل ہیں جو سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے وہاں موجود تھے۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ ریاستی دارالحکومت منٹگمری کے شمالی مشرقی قصبے میں پارٹی کے دوران پیش آیا، جس میں کم از کم 20 افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ حکام نے واقعے میں کسی حملہ آور کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی ہلاک ہونے والوں کے نام بتائے گئے ہیں۔ مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے FBI سمیت وفاقی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ترقی اور جدت کی دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے نیا انقلاب برپا کر دیا۔ مصنوعی ذہانت IT کے شعبے میں ترقی کی انتہا قرار دی جا رہی ہے۔ انسان اس سے کیا کیا فوائد اور سہولتیں حاصل کر سکے گا، یہ جانیے اس رپورٹ میں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مراد یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر یا مشین کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کریں کہ وہ انسانوں کی طرح سے سوچ کر عمل کر سکے، یا پھر ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر میں ایسی ہدایات فیڈ کر دی جائیں کہ وہ منطقی طریقے سے سوچے اور کام کرے۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت ہم روزمرہ کے بہت سے کام کمپیوٹر کی مدد سے آٹومیٹک طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، جیسے اس وقت بھی روبوٹ سے حیرت انگیز خدمات لی جا رہی ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں اب ایسے سٹورز بن گئے ہیں جہاں اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کوئی بھی جا کر شاپنگ کر سکتا ہے۔ وہاں سیلز مین کی ضرورت ہے اور نہ ہی کیشیئر کی، بلکہ خریدار جب شاپنگ کر کے نکلتا ہے تو اس کے پاس موجود کارڈ سے خود بخود بل وصول ہو جاتا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں بھی مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کسی انقلاب سے کم نہیں۔ طلبہ انتہائی مختصر وقت میں مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی سائنس فکشن کے دائرے سے نکل کر حقیقی دنیا میں منتقل ہو گئی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں اور ماہرین کے مطابق تقریباً 20 سال بعد وہ وقت بھی آئے گا جب انسان اپنی دماغی قوت سے کسی بھی گیجٹ کو کنٹرول کر سکے گا اور اس کی کارکردگی کسی جدید ترین مشین سے کم نہ ہوگی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ النینو نائب کی چھوٹی چھوٹی مشینیں دماغ اور جسم کے دیگر حصوں میں داخل کر کے اسے حد سے زیادہ ذہین، طاقتور اور کارآمد بنا سکیں گی۔ شعبہ تحقیق اور ایجادات سے تعلق رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے زیادہ 2 اشروں میں انسان غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل بن جائے گا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے مابین بحری تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر منڈی بہاؤالدین میں چینی کی ذخیرہ اندوزوں، ناجائز منافع خوروں اور چینی کی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمرانی مات کی نگرانی میں اسسٹنٹ کمشنر منڈی بہاؤالدین طارق محمود نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مختلف مقامات پر چینی کے گوداموں پر چھاپے مارے۔ غیر قانونی طور پر چھپائی گئی چینی کی 3100 بوریاں برآمد کر کے ذخیرہ اندوزوں کو لاکھوں روپے جرمانہ کیا گیا اور گودام سیل کر کے ان کے خلاف متعلقہ تھانوں میں مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر منڈی بہاؤالدین شاہد عمران کا کہنا تھا کہ عوام الناس کو سستی اور معیاری اشیاء خورنوش کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ رمضان المبارک میں کسی کو بھی عوام کا معاشی استحصال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اور وزیر اعظم کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر لودھراں چینی کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف میدان میں آ گئے۔ ڈپٹی کمشنر سید مشہد رضا قاسمی نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سیدہ آمنہ موردی اور اسسٹنٹ کمشنر لودھراں اشرف صالح کے ہمراہ مختلف گوداموں کا اچانک معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اشیاء خورنوش کی ذخیرہ اندوزی پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گودام مالکان کو ہدایت بھی کی کہ اسٹاک رجسٹرز اور فروخت کا ریکارڈ لازمی اپ ڈیٹ رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے حکومتی ہدایت پر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی گرانی سے گریز کریں۔ آئی جی پنجاب نے صوبہ بھر میں مذہبی اور عوامی مقامات بشمول مارکیٹوں، بازاروں اور دیگر حساس جگہوں کے فوڈ پروف سیکیورٹی انتظامات کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ آئی جی آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پنجاب پولیس ٹریفک کی روانی سمیت چوری، راہزنی کی وارداتوں کی بیخ کنی کرے۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ پیٹرولنگ اور ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کو یقینی بناتے ہوئے عید بازاروں میں واردات مافیا کے خلاف پولیس شہریوں کو تحفظ دے۔ بینکوں، کمرشل مقامات اور ATM مشینوں کو بھی سیکیورٹی میں رکھا جائے۔ گورنر پنجاب انجینئر محمد بلیغ الرحمان کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر مرحوم مفتی عبدالشکور کی مذہبی بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ گورنر پنجاب کے دورہ بہاولپور کی مزید تفصیل ہمارے نمائندے عبداللہ مختار کی رپورٹ میں جانیے۔
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने वफाकी वजीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर के ट्रैफिक हादसे में जान बहक होने पर दिली अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम मुफ्ती अब्दुल शकूर की बतौर वजीर मजहबी अमूर दीनी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। गवर्नर पंजाब ने मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी की दुआ भी की। मौलाना की खिदमात जो हैं वो सियासत के मैदान में, दीन के में, तालीम में बहुत यादगार हैं और मैं समझता हूँ कि ये उनकी न सिर्फ उनके लिए तोशा आखरत हैं बल्कि एक बहुत बड़ा सदका जारी हैं कि जो उन्होंने अच्छे काम किए, जो पौधे लगाए, वो यकीनन वक्त के साथ साथ छाँव भी देंगे, फल भी देंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वाइस चांसलर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी डॉक्टर सज्जाद खान, सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर साइका इम्तियाज और कमिश्नर बहावलपुर एहतशाम अनवर ने भी मुलाकात की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने इस्लामी यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट फ्लैट के लिए 10 नई बसों का भी इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि तुलबा और तालिबात के लिए आरामदेह और महफूज सफर की फराहमी बहुत अहसन इकदाम है। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावलपुर। शेखुपुरा और उसकी तहसीलों में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। रवां बरस हुकूमत की तरफ से फी मन गंदम का रेट 3,900 रुपये मुकर्रर करने से काश्तकार इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त शेखुपुरा में एक मरकज खरीदारी गंदम पर मौजूद हैं। इस्लाम गाजी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला शेखुपुरा में भी गंदम की खरीदारी का सरकारी हदफ पूरा करने के लिए 14 मराकज़ बनाए गए हैं। रवां बरस 1,60,000 मीट्रिक टन गंदम की जो खरीदारी का सरकारी हदफ है वो मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए काश्तकारों को 16 लाख बारदाने के बैग फराहम किए जा रहे हैं। ज़िला भर में जो 14 मराकज़ खरीदारी गंदम बनाए गए हैं वहाँ पर ज़िम्मेदारों काश्तकारों को जो हुकूमत की तरफ से फ़ी मान 3,900 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है वो अदा किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 100 kg के पीछे जो डिलीवरी चार्जेस हैं उसकी मद में भी 60 रुपये काश्तकारों को अदा किए जा रहे हैं। मैं गंदम का ग्रोअर हूँ और जो ये गवर्नमेंट की गंदम की कीमत मुकर्रर की है ये एक तसल्ली बख्श कीमत है और बहुत अच्छी कीमत दी है। सारी सहूलियात हैं, बैठने के लिए साया भी है और स्टाफ भी सारा कोऑपरेटिव है। इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं, इधर बहुत अच्छा इंतज़ाम चल रहा है, बर वक्त मतलब हर चीज़ की फराहमी हो रही है, जल्दी माल उतरवाया जा रहा है। अच्छा इंतज़ाम है, यहाँ के ऑफिसर भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा तामन कर रहे हैं, टाइम से गाड़ी आती है, टाइम से उतर जाती है। गंदम की दूसरे अजला को तरसील रोकने के लिए दफ़ा 144 का नफाज किया गया है और मुख्तलिफ मकामात पर 18 चेक पोस्टें भी बनाई गई हैं। ओकाड़ा में सरकारी मुकर्रर करदा कीमत खरीद पर किसानों से तमाम हुकूमती खरीदारी मराकज़ गंदम खरीदने में मसरूफ़ हैं। तफसील जानने के लिए हमने राबता किया है अपने नुमाइंदे चौधरी फताहुल्लाह नवाज फरीदी से। जी फताहुल्लाह, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल पंजाब भर की तरह डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की तीनों तहसीलों में इस वक्त जोरों शोर के साथ सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का अमल जो है वो जारी है। 3800 रुपये फी मन के हिसाब से किसान भाइयों से गंदम जो है वो खरीदी जा रही है। साथ ही साथ जो बारदाने की तरसील का शफाफ से तरसील का सिलसिला वो भी जारी है। जो किसान भाई हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर मुतमिन नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये हुकूमत की जो है वो किसान दोस्त पॉलिसीज़ का हिस्सा है कि इस वक्त जो 3800 रुपये की रिकॉर्ड सतह पे जो कीमतें खरीद किसानों से जो की गई है, इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो उस पर जो है किसान बरादरी ने इजहार इत्मीनान जो है वो किया है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की तीनों तहसीलों में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि टोटल जो है वो 15 मराकज़ कायम किए गए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में जो हदफ मुकर्रर किया गया वो 1,34,000 मीट्रिक टन जो है वो सरकारी सतह पर गंदम खरीदी जाएगी। तो इसके साथ साथ यहाँ पे ज़िलाई हुकूमत ने पंजाब गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत के मुताबिक सख्ती से इस पर अमल दरामद जो है वो उसको यकीनी बनाया कि किसी सूरत भी ज़िले से बाहर जो गंदम की नकलो अमल वो नहीं हो सकती और फी फर्द जो है वो 25 मन स्टोर जो है वो गंदम कर सकता है। तो इस सिलसिले को भी जो किसान भाई हैं वो बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये हुकूमत की सतह पे किसान दोस्त पॉलिसीज़ का ही हिस्सा है कि जिसके सबब इस तरह के जो काम है वो किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को बिल वास्ता और बिला वास्ता बहुत ज़्यादा फ़वायद मैसर आएंगे। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। ननकाना साहब में भी गंदम की कटाई जोरों शोर से जारी है। जिला भर में 3,18,000 एकड़ पर काश्त गंदम की फसल की कटाई की जा रही है। तफसील बताएंगे जावेद अहमद मौविया। जी बिल्कुल, जिला ननकाना साहब में भी जो है गंदम की कटाई जोरों शोर से जारी है। महकमा ज़राअत के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जिले भर में इस साल 3,18,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई है, जहाँ से 40 मन फी एकड़ पैदावार जो थी वो मतवक्को थी। ताहम हालिया बारिश
और ज़ालाबारी की वजह से गंदम की फी एकड़ औसत पैदावार जो है वो 34 मन तक रहने की तवक्को है। महकमा ज़राअत की तरफ से किसानों को मशवरा दिया गया है कि वो बारिश, हवा और ज़ालाबारी से मुतासरा फसल को हार्वेस्टर के बजाय दरांती से काटें और फसल काटने से कबल महकमा मौसमियात की जानब से बारिश की पेशगोई को भी लाजमी मद्देनजर रखें ताकि वो मजीद नुकसान से बच सके। तो जो अगेती फसल थी वो दाना ले चुकी थी, उसमें पैदावार कम मुतासर होगी, लेकिन जो पछेती काश्ता फसल है जो दाना जिसमें बन रहा था उसकी पैदावार 10% जो है ना वो कम हो सकती है। महकमा ज़राअत की तरफ से किसानों में गंदम का पैदावारी मुकाबला भी करवाया जा रहा है, जिसमें ननकाना साहब इसकी 3 तहसीलों से 30 किसान जो है वो हिस्सा लेंगे। इस मुकाबले का मकसद किसानों की हौसला अफजाई के साथ साथ उन्हें जदीद तरीका काश की तरफ जो है वो मतवज्जो करना है। किसानों ने शुक्रिया अदा किया पंजाब हुकूमत का कि उन्होंने इस साल जो है वो गंदम की फी मन जो कीमत है वो 3900 रुपये मुकर्रर की है। जी। जिला शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद में 86,000 एकड़ पर काश्त की गई गंदम की फसल की कटाई जारी है। तहसील भर में गंदम की खरीदारी के लिए 2 मराकज़ बनाए गए हैं। तफसील हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद से जानिए। सफदराबाद में 86,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर गंदम की फसल काश्त की गई है। तहसील सफदराबाद में गंदम की औसत पैदावार 45 से 50 मन फी एकड़ है। तहसील सफदराबाद में इस वक्त कटाई जारी है। किसान जदीद मशीनरी और रवायती तरीके से गंदम की कटाई कर रहे हैं। महकमा खुराक ने तहसील सफदराबाद में इस साल गंदम खरीदारी का हदफ 37,500 मीट्रिक टन मुकर्रर किया है और इस साल गंदम का सरकारी रेट 3,900 रुपये फी मन है। 50 तो 55 मन हो रही है तो रेट भी बहुत अच्छा लगा है, गवर्नमेंट ने लाता है, मेहरबानी है ना दी। रेट तो बहुत ज़्यादा अपना ठीक है, जिमीदार नो 50-55 मन औसत आ रही है, ठीक है। 3,900 रुपया रेट बहुत अच्छा दे रहे हैं जी, बहुत खुश हाल है। गंदम की खरीदारी के लिए सफदराबाद में 2 खरीदारी मराकज़ कायम किए हैं, जहां से किसानों को पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर बारदाना फराहम किया जा रहा है। कि गवर्नमेंट ने स्पोर्ट प्राइस भी पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है, 2200 रुपये से 3900 रुपया कर दिया है। हमारे मुल्क में भी इंटरनेशनल लेवल का हमें जो है वो मिल रहा है, रकम मिल रही है उसका। महकमा खुराक ने गंदम की खरीदारी अमल की शफाफियत के लिए खरीदारी मराकज़ पर CCTV कैमरे लगाए हैं, जिनसे खरीदारी के अमल की निगरानी की जा रही है। मोहम्मद खालिद, PTV न्यूज़, सफदराबाद, शेखुपुरा। अहमदपुर सियाल में भी गंदम की खरीदारी का आगाज कर दिया गया है। तनवीर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अहमदपुर सियाल में भी गंदम की खरीदारी शुरू कर दी गई है। इस मकसद के लिए महकमा खुराक पंजाब की तरफ से तहसील अहमदपुर सियाल में गंदम खरीदारी के 4 मराकज़ कायम किए गए हैं। मरकज खरीदारी गंदम अहमदपुर सियाल पर खरीदारी का हदफ 2,25,000 मीट्रिक टन मुकर्रर किया गया है और 3900 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जा रही है। हमारा अहमदपुर सियाल सेंटर का टारगेट पूरे अहमदपुर सियाल तहसील में पहले नंबर पर है। 2,25,000 टारगेट है। हम तकरीबन 1,30,000 बारदाना इशू कर चुके हैं। सबसे जो बेहतर हम जिम्मेदारों को इस बार फायदा हासिल हो रहा है वो भाईजान इस बात का है कि किसी किस्म का कोई रश नहीं हो रहा। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त अनलोडिंग हो रही है। गंदम खरीदारी के तमाम मराकज़ पर किसानों के बैठने के लिए साया और पीने के लिए ठंडे पानी का भी बंदोबस्त किया गया है। तनवीर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अहमदपुर सियाल। और माह सयाम की फ़ैज़ बरक़ात समेटती PTV की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन पूरे आबोताब के साथ जारी है। तफसील बता रही हैं हुमा सदफ। 25वें रोजे के रमजान ट्रांसमिशन का आगाज कारी वसीम सरवर ने सूरह आले इमरान की आयात मुबारिका की तिलावत से किया। अहमद रजा कादरी के पेश करदा कसीदा बुर्दा शरीफ के साथ साथ मेहमानों की जानिब से पढ़े जाने वाले सूफियाना कलाम ने माहौल रूह परवर कर दिया। मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। शरियात के मेहमान खसूसी मारूफ रूहानी स्कॉलर सरफराज ए शाह साहब थे। उन्होंने कहा कि आजमाइशों में अल्लाह से शिकवा करने की बजाय हर हाल में उसका शुक्र बजा लाना ही बंदगी का फलसफा है। शाह साहब की फिक्र अंगेज गुफ्तगू ने हाजरीन के दिलो दिमाग पर गहरे नकूश छोड़े। जब इंसान रब की रजा में राजी होना सीख लेता है तो फिर वो सब्र के मकाम पर ऑटोमेटिकली चला जाता है।
और ये जो मकाम रज़ा है दर हकीकत यही शुक्र की तरफ ले जाएगा इंसान को। हादिया हाशमी ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र व शुक्र पर मबनी जिंदगी के मुख्तलिफ वाकयात सुनाए। खत्तात वासिल शाहिद ने कैनवस पर अल्लाह के मुबारक नाम तहरीर किए। डॉक्टर जैनब गोंदल ने इलाज बिल ग़िज़ा की अहमियत बयान की। रब्बे ज़िदनी इल्मा सेगमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरपुर और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तालिब इल्मों ने ज़हनी आजमाइश के मुकाबलों में हिस्सा लिया। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का पैगाम सब्र, बर्दाश्त और रवादारी था। ये वो औसाफ हैं जो अगर इनफरादी सतह पर भी अपना लिए जाएं तो इसके असरात माशरती सतह पर मुरतब होते हैं। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इश्क़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मोहम्मदिया का असासा है और कसीदा बुर्दा शरीफ इसका खूबसूरत इजहार। रिपोर्ट कर कसीदा बुर्दा शरीफ 150 से ज़ायद अशार पर मुश्तमिल है। हज़रत हसन बिन साबित के बाद जिस कलाम को शोहरत हासिल हुई वो इमाम शेख शरफुद्दीन बुसरी का तहरीर करदा कसीदा बुर्दा शरीफ था। जब ये कसीदा आपने लिखा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया तो आका अलैहिस्सलाम आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और आपसे कसीदा के ये अशार सुने और फिर आपने अपना दस्ते मुबारक आप के उस हिस्से पे फेरा कि जहाँ पे हज़रत इमाम बुसीरी को फालिज का मर्ज़ लाख था और जब आपकी आँख खुली तो वो मर्ज़ भी जाता रहा और साथ सरहाने मेरे आका अलैहिस्सलाम का बुर्दा यानी चादर मुबारक जिसको अरबी में बुर्दा कहते हैं वो भी तशरीफ़ फरमा था। पीटीवी रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में फर्जंदाने तौहीद के जज्बा ईमानी को गरमाने के लिए कसीदा बुर्दा शरीफ रोज़ाना की बुनियाद पर पेश किया जाता है। वसल हुनैन वसल बदरन वसल उहुदन फुसुलहत फिल्लहुम अदगा मिनल वखमी मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन जहां नाजरीन में इस्लामी मालूमात और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ का जरिया है वहीं यह ज़हनी और कल्बी सुकून का भी बाइस है। पीटीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन में कसीदा बुर्दा शरीफ मुस्तकिल हिस्सा है जिसे हाज़रीन बेहद पसंद कर रहे हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर रमज़ान राशन पैकेज की तरसील सूबे भर में जारी है। इस हवाले से देखिए रिपोर्ट। बलूचिस्तान में 1 लाख खानदानों को वज़ीर आला पैकेज के तहत राशन फराहमी जारी है। ईद से पहले सूबे के हर जिले के मुस्तहिक़ खानदानों तक राशन पहुँचाने का मिशन डिप्टी कमिश्नर्स की निगरानी में सर अंजाम दिया जा रहा है। तहसील लेवल तक हकदार तक हक पहुँचाने में असिस्टेंट कमिश्नर्स और दूर दराज इलाकों में फ़र्ज की अंजाम दही लवीज रिसालदार पूरा कर रहे हैं। जैसे ये 250-250 के हिसाब से हमें हर दूसरे या तीसरे दिन एक ट्रक मिलता रहेगा और हम इसी तरीके से लिस्टें बनाते जा रहे हैं। फिर अपने तौर पर इसको शफाफ रखने के लिए हमने ये भी किया है कि बाकायदा हम फिल्टर कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि बिफोर ईद हम ये जो टास्क वो कंप्लीट करके तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये पैकेज पहुंचा दें। तमाम अजला के लिए राशन यहाँ से रवाना हो रहा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने से पहले तमाम जो मुस्तहिकीन लोग हैं उन तक ये राशन पहुँच जाएगा। मुस्तहिकीन तक राशन फराहमी के वज़ीर आला के ऐलान के बाद PDM में मुसलसल राशन बैग्स की तैयारी और तरसील में मसरूफ है। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। निजी तंजीम की तरफ से मुल्क के मुख्तलिफ अजला में सैलाब से मुतासर अफराद में रमज़ान रिलीफ पैकेज तकसीम किए जा रहे हैं। ठट्ठा के सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए जाने वाले रिलीफ पैकेज की तकसीम की तफसील मिर्ज़ा हसन बेग से। कि बरसात और सैलाब को 7 माह का अरसा गुजर चुका है लेकिन मुतासरीन अभी तक शदीद परेशानी का शिकार हैं। ख़ास तौर से रमज़ान के अंदर उनको बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मौके पे कराची से दुआ फाउंडेशन ने एक बड़ा नेक कदम शुरू किया है और उनके साथ जो है क्रिसेंट रिलीफ वालों का ताउन है। इस सिलसिले में उन्होंने एक रमज़ान पैकेज शुरू किया है जो कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में ये जो है राशन बांटा जाएगा। उसके अलावा पंजाब और बलूचिस्तान और KPK में भी राशन की तकसीम शुरू हो चुकी है। 150 से ज़्यादा ये गांव में फैमिलीज़ हैं
جن کو یہ راشن اس وقت دیا جا رہا ہے، اور یہ صرف ٹھٹہ تک ہی محدود نہیں ہے، یہ سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر جیسے عمر کوٹ کے اندر، بدین کے اندر، تھرپارکر میں، خیرپور کے اندر ایک بڑا ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن کا پروگرام کیا۔ کرسچن ریلیف آسٹریلیا اور دعا فاؤنڈیشن کا مشترکہ ایک پروگرام ہے، رمضان راشن ڈرائیو۔ یونین کونسل چلیا کے گاؤں اللہ و خاص کلی کے اندر جو ہے 105 لوگوں کو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ این جی اوز کی طرف سے ہمیں راشن بھی دیا گیا تھا، پہلے سیلاب میں بھی اور ابھی بھی اس رمضان میں بھی دعا فاؤنڈیشن کی طرف سے جو نا ہمیں راشن دیا جا رہا ہے، تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سیلاب میں بھی جو نا وہ مدد کی، اور ابھی رمضان کے اس بھلارے مہینے میں بھی ہمارے ساتھ جو نا وہ مدد کر رہے ہیں۔ حیدرآباد، نواب شاہ، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الائر اور دوسرے اضلاع میں یہ راشن تقسیم ہوگا۔ یہ ایک بہت نیک قدم ہے اور متاثرین کو جو ہے ایک بہت بڑی مدد ہوئی ہے۔ اور عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ منانے کے لیے پردیسیوں نے اپنے آبائی علاقوں کی جانب رخ کر لیا۔ اس بارے میں دیکھیے اسلام آباد سے رضوان عارف کی رپورٹ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے پردیسی عید اپنے گھر والوں کے ساتھ منانے کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ریلوے اسٹیشنز اور بس اڈوں پر رش معمول سے زیادہ ہے۔ میں ملتان بیسیکلی جانا چاہ رہا ہوں نا، تو اس وجہ سے بس کے چیک کر رہا تھا کہ کون سی بس صحیح ہے۔ میں کراچی جا رہی ہوں اور میں ٹرین سے سفر کر رہی ہوں، اپنی کراچی جا کے میں عید مناؤں گی، وہاں پہ سارے خاندان وغیرہ سب رہتے ہیں تو وہاں پہ جائیں گے۔ عوامی سواری ہے، اس کے کرائے بڑے مناسب ہونے چاہیے، لیکن ابھی بھی جو سروسز یہ پرووائڈ کر رہے ہیں اس حساب سے ٹھیک ہے، لیکن آئی تھنک کہ 3,000-3,500 تک بھی مناسب لگتا ہے۔ عید کے موقع پر لوگوں کے اپنے آبائی علاقوں کی جانب جانے کی وجہ سے جی ٹی روڈز اور موٹر ویز پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اسی صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ٹرانسپورٹرز اوور لوڈنگ اور زیادہ کرایہ لینے کے مرتکب پائے جاتے ہیں۔ عید انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پردیس ہے تو گاؤں تو جانا پڑتا ہے، لیکن جو کرایہ دیکھ کے پھر بندے کا دل مایوس ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ پیسنجر تقریباً 20ویں روزے کے بعد بہت زیادہ ہو جاتا تھا، لوگ اب جائیں گے بس ایک دن کے لیے، بدھ کو یا جمعرات کو، وہ بھی وہ لوگ جائیں گے جو لوگ فیملیز والے ہیں، جن کی فیملی ادھر اکیلے ادھر ہیں۔ میں جا رہا ہوں کوستان، تو یہاں پہ کرائے بہت مہنگے ہیں، جائیں گے گاؤں میں وہیں کھائیں گے پیئیں گے، یہاں تو شہروں میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی جانب سے عید الفطر پر کرایوں میں 10% کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت اندرون ملک سفر کرنے والے مسافر مستفید ہو سکیں گے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، خطہ پٹھوار اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہا۔ اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ خیرپور میں 42، مٹھی میں بھی 42، جیکب آباد میں 43، روہڑی میں 42، جبکہ سکرن میں بھی 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ سنجاوی اور گرد و نواح میں تیز بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ کلی اصغرا کے ندی نالوں میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال سے سنجاوی ہرنائی روڈ ٹریفک کے لیے تاحال بند ہے۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔